ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 6 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ PCS, PPSC, SSC, CGL, CHSL, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬੈਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਵੇਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੰਗਾ ਉਤਸਵ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਉਤਸਵ ਹੈ 2020 ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ ਦੁਆਰਾ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ। ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਐਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਵਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਨ 4 ਨਵੰਬਰ 2008। 4 ਨਵੰਬਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਵਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੰਗਾ ਉਤਸਵ 2020 ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੁਆਰਤੇ ਪੈਚੀਕੋ। ਡੁਆਰਤੇ ਪੈਚੀਕੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, IPU। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ 179 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇੰਟਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਤੇ ਪਾਚੇਕੋ। 206th ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1889 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ KCB ਗਰੁੱਪ ਬੈਂਕ। KCB ਗਰੁੱਪ ਬੈਂਕ ਕਿੱਥੇ ਦਾ? ਕੇਨੀਆ ਦਾ। ਕੇਨੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾਇਰੋਬੀ। ਕੇਨੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਇਰੋਬੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਸੇਫੈਸਟ ਬੈਂਕ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ ਦਾ 29th ਐਨੂਅਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਵਰਲਡ ਸੇਫੈਸਟ ਬੈਂਕ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਬਾਏ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਰਲਡ ਸੇਫੈਸਟ ਬੈਂਕ KCB ਗਰੁੱਪ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੇਫੈਸਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੇਫੈਸਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਆਰਟ ਹਾਊਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਹੈਲਪ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਬੈਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਆਰਟ ਹਾਊਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਲਖਨਊ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਿਆ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ। ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 6 ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ 6 ਏਅਰਪੋਰਟ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਖਨਊ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਪੁਰ, ਮੈਂਗਲੁਰੂ, ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮਪੁਰਮ, ਗੁਹਾਟੀ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਲਵਰਸਡ ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਟਰ ਰਿਸਕ ਫਿਲਟਰ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
इसकी रिपोर्ट भी जारी की गई जिस दे अंडर दस्या गया कि 30 इंडियन सिटीज़, वैसे तो वर्ल्ड लैवल पर रिपोर्ट जारी की गई है, अपने लिए इंपोर्टेंट बनेगा इंडिया लैवल पर। इंडिया लैवल पर अनाउंस किया गया कि 30 इंडिया की ऐसी सिटीज़ ने जिहड़ी वाटर रिस्क से होनी है 2050 तक, 2050 तक इन्हां सिटीज़ दे विच पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। ठीक है, जिस दे विच जयपुर लिस्ट जिहड़ी जारी की गई सी, उस लिस्ट दे विच जयपुर टॉप ते है, इंदौर और थाने, जयपुर, इंदौर और थाने याद रखने। नेक्स्ट है राजकुमार राव। राजकुमार राव नूं ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया सिस्का ग्रुप का। सिस्का ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए ने एक्टर राजकुमार राव। रूपसी एयरपोर्ट ऑफ असम, असम का जो रूपसी एयरपोर्ट है ये अपने ऑपरेशंस शुरू करेगा अंडर रीजनल कनैक्टिविटी स्कीम फ्रॉम जनवरी 2021। क्वेश्चन स्टैटिक फॉर्म के पूछा जाएगा कि रूपसी एयरपोर्ट किहड़ी स्टेट दे विच है। रूपसी एयरपोर्ट कित्थे है? असम दे विच है। ठीक है, बेसिकली असम का एक विलेज है कोकरोझर, उत्थे है। अपने लिए डिटेल दे विच इंपोर्टेंट नहीं है, अपने लिए स्टेट ही जरूरी है, याद रखनी है, असम दे विच। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस, 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस विद थीम एमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। नेक्स्ट है मलयालम मूवी, एक मलयालम मूवी के डायरैक्टर ने हरिहरम, हरिहरम एक मलयालम डायरैक्टर ने इन्हों केरला का हाईएस्ट ऑनर दिता गया JC डैनियल अवार्ड। केरला द्वारा की किया गया हाईएस्ट ऑनर लिटरेचर दे भी दिता गया। उस तो बाद केरला का हाईएस्ट ऑनर सिनेमा के फील्ड के दिता गया। लिटरेचर के जोड़ा दिता गया सी वो पॉल दिता गया सी, पॉल दचारिया नाम सी। हरिहरन सिनेमा के फील्ड के JC डैनियल अवार्ड दिता गया। नेक्स्ट है डॉक्टर सुशांता कार, डॉक्टर सुशांता कार नूं प्रोफैसर AN बहादुरी मैमोरीयल लैक्चर अवार्ड दिता गया। प्रोफैसर AN बहादुरी मैमोरीयल लैक्चर अवार्ड 2020, डॉक्टर सुशांता कार। नेक्स्ट है राजीव जलोटा नूं चेयरमैन अपॉइंट किया गया मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट चेयरमैन राजीव जलोटा। NDDB चेयरमैन दिलीप रथ, दिलीप रथ NDDB के चेयरमैन ने। NDDB की फुल फॉर्म है नैशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। नैशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन ने दिलीप रथ, इन्हों मैंबर अपॉइंट किया गया बोर्ड के इलैक्ट किया गया इंटरनैशनल डेयरी फैडरेशन के, इंटरनैशनल डेयरी फैडरेशन के बोर्ड के इलैक्ट किया गया। हैडकुआटर कित्थे है? ब्रुसल्स बेल्जियम के। नेक्स्ट है लेजेंडरी वायलिनिस्ट TN कृष्णन की रिसेंटली डैथ हो गई है। इन्हों द्वारा पद्म भूषण दिता गया 1992 के और पद्मश्री 1973 के। IIT मद्रास, IIT मद्रास द्वारा IITM कोविड गेम लॉन्च की गई। IITM कोविड गेम लॉन्च की गई है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग जनरल पब्लिक। हरियाणा द्वारा आशा पे एप्लीकेशन लॉन्च की गई। आशा पे एप्लीकेशन हरियाणा द्वारा आशा वर्कर्स के लिए लॉन्च की गई। नेक्स्ट है केरला, केरला के पब्लिक सर्विस कमीशन ने, केरला पब्लिक सर्विस कमीशन ने 10% रिजर्वेशन अनाउंस की है EWS सैक्टर के लिए। EWS सैक्टर के लिए 10% रिजर्वेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 103rd अमेंडमेंट के नाल 2019 के ऐड की गई। ठीक है, हुण इसनूं डिफरेंट स्टेट्स द्वारा लागू किया गया। उस तो बाद स्टेट्स तो बाद उन्होंने जोड़े डिपार्टमेंट्स ने उन्होंने भी लागू करना शुरू किया। ठीक है, तो केरला के पब्लिक सर्विस कमीशन ने 10% रिजर्वेशन शुरू की है EWS सैक्टर के लिए। राजस्थान असैंबली ने रेजोल्यूशन पास किया मैंडेटरी किए ने मास्क पहनने के लिए। राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा ही NTPC के नाल NTPC और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाल एग्रीमेंट किया 8000 रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा। 8000 मेगावाट का एक रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के उत्ते, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के उत्ते। बेसिकली अगर आप गल करिए कि चाइना, इंडिया और चाइना के बॉर्डर के उत्ते रेलवे लाइन बना रहे हैं, तो आप की कर रहे हैं, आप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के उत्ते रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रहे हैं। ठीक है, वैसे न्यूज़ के कि चाइना इंडिया और जो चाइना का बॉर्डर है उत्थे उसके नज़दीक रेल लाइन बना रहे हैं। हालांकि न्यूज़ पार्ट तो ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं बनेगा,
पर याद रखना एक बार। नेक्स्ट है तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा 100% एग्जम्पशन अनाउंस की गई है मोटर व्हीकल टैक्स से, किस दे लई? बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स दे लई। बेसिकली जिहड़े ई व्हीकल्स ने उन्हां दे लई टैक्स माफ किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। नैक्सट चलते हैं स्टैटिक पोर्शन के अवार्ड डिस्कस कर रहे हैं। अज लास्ट दिन अपना अवार्ड्स का। दूती चंद एथलैटिक्स के शिवा केशवान विंटर स्पोर्ट्स के लिए, सुयाश नारायण यादव पैरा स्विमिंग के लिए, संदीप पैरा एथलैटिक्स के लिए, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग के विच, और सावंत अजय आनंद इक्वेस्टेरियन के लिए इन्हों अर्जुन अवार्ड दिता गया सी। ठीक है जी, अर्जुन अवार्ड सारे डिस्कस किए ने अपने, बार बार रिविजन की है, याद रखने ने इंपोर्टेंट बनने। इस तो इलावा नैक्सट स्टैटिक के की वैसे तो मेरा प्लान से कि द्रोणाचार्य अवार्ड डिस्कस कराए जान, ठीक है, पर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि स्टैटिक के कुछ स्टैटिक पोर्शन ही डिस्कस किया जाए, अवार्ड ना डिस्कस किए जान। तो स्टैटिक के की चीज़ डिस्कस करना चाहते हो कमेंट बॉक्स के अज दस दें, कल के सैशन के आप उसनू शुरू कर देंगे। ठीक है, नैक्सट चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ के वाल। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करांगे वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? एक कल के दिन ऑब्जर्व किया गया सी 5 नवंबर नूं। 5 नवंबर नूं वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया गया, जिसकी थीम रही स्ट्रैंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। इस दिन की थीम रही है स्ट्रैंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। ठीक है, हुण रिसेंटली इन सुनामी जिहड़ा वर्ड है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ दे विच रहा है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर आप गल करिए, अगर मैं एग्जामिनर होंदा तो मैं क्वेश्चन किस तरीके नाल बनांदा। रिसेंटली सुनामी किस कारण न्यूज़ दे विच रहा सी? सुनामी रैडी टैग दिता गया सी। सुनामी रैडी टैग किहड़ी स्टेट के 2 विलेजिज नूं दिता गया सी? 2 विलेजिज नूं सुनामी रैडी टैग रिसेंटली अनाउंस किया गया है। किहड़ी स्टेट के 2 विलेजिज नूं दिता गया? कमेंट बॉक्स में भी दसने। ठीक है, और हो सके तो विलेजिज के नाम भी दसने ने, विलेजिज के नाम भी इंपोर्टेंट बन गए। सुनामी रैडी टैग दिता गया सी 2 विलेजिज नूं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन फ्लड वार्निंग सिस्टम रिसेंटली इंडिया की केड़ी ऐसी तीसरी सिटी बनी है, 3rd सिटी केड़ी बनी है जिसनों की दिता गया फ्लड वार्निंग सिस्टम जारी किया गया? ठीक है, हो सके तो पहलियां 2 भी दसनिया ने। ठीक है, ये सारिया चीज़ां मैंने दसिया हुई ने पहले। सुनामी रैडी टैग भी आप स्टडी किया हुआ है, फ्लड वार्निंग सिस्टम भी स्टडी किया हुआ है। ठीक है, पहले 2 भी दसे सी कि पहले 2 कित्थे शुरू हुए सी, और तीसरा फ्लड वार्निंग सिस्टम किसनों दिता गया सी? कमेंट बॉक्स में दसने। ठीक है जी, इस तो इलावा अगर आप गल करिए फिलीपीनस के बारे आप डिस्कस किया सी। फिलीपीनस के आप डिस्कस किया सी गोनी तूफान आया हुआ है, याद रखना, गोनी साइक्लोन आया हुआ है। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ ग्रांटेड $132.8 million लोन टू मॉडरनाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन नैटवर्क इन मेघालय दे विच पावर डिस्ट्रीब्यूशन नैटवर्क नूं इंक्रीज करने के लिए, मॉडरनाइज करने के लिए $132.8 million का लोन प्रोवाइड किया गया। $132.8 million। मेघालय की गल करते हैं, मेघालय के रिसेंटली गवर्नर अपॉइंट किए गए, नवे गवर्नर। मेघालय के गवर्नर कौन अपॉइंट किए गए सी? सत्यपाल मलिक। ठीक है, ये कित्थे दे गवर्नर होंदे सी? गोवा के गवर्नर होंदे सी। गोवा तो पहले ये जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर होंदे सी। जम्मू एंड कश्मीर के जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट होंदी सी उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर सी। बाद दे विच गोवा आ गए, गोवा तो बाद इन्हों कित्थे भेजा गया? मेघालय भेज दिता गया। ठीक है, गोवा की गल करते हैं, गोवा का इस टाइम एडिशनल चार्ज महाराष्ट्र के गवर्नर के लवे है, जो कौन ने? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, हुण अगर गल करिए कि फंड किसने दिता है? ADB ने दिता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। फैक्ट्स इंपोर्टेंट बन गए, डिस्कस कर लें। सब तो पहले इस तरीके चार चीज़ा डिस्कस करेंगे। सब तो पहले डिस्कस करते हैं हैडकुआटर। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हैडकुआटर वाशिंगटन DC के विच है। ADB का हैडकुआटर मैट्रो मनीला फिलीपीनस के विच है। NDB शंघाई चाइना के विच है, और AIIB का बीजिंग चाइना के विच है। ठीक है, हैडकुआटर इंपोर्टेंट बन गए। इस तो इलावा नंबर ऑफ कंट्रीज कितनियां मैंबर ने?
वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों च 189 मैंबर कंट्रीज़ होंदियां सी। रिसेंटली एक होर कंट्री ऐड की गई है, दोनों के 190 कंट्रीज़ हो चुकी ने। ठीक है, इत्थे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एग्जाम के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक के कितनी मैंबर कंट्रीज़ ने, या IMF के कितनी मैंबर कंट्रीज़ ने, या फिर केड़ी कंट्री वर्ल्ड बैंक की 190 भी मैंबर बनी है, या IMF की 190 भी मैंबर बनी है। लास्ट कंट्री बनी है तो एंडोरा, कंट्री का नाम याद रखना है एंडोरा। एंडोरा कंट्री वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों की 190 भी मैंबर बनी है। ADB की गल करते हैं, 68 मैंबर कंट्रीज़ ने। NDB ब्रिक्स कंट्रीज़ का बैंक है, 5 मैंबर्स ने। AIIB 103 मैंबर कंट्रीज़ ने। रिसेंटली इस भी लिबेरिया कंट्री ऐड की गई सी। ठीक है जी। इस तो इलावा वर्ल्ड बैंक के हैड डेविड मलपास, IMF के हैड क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ADB के हैड मसत्सुगु आसाकावा, NDB के हैड ने मार्कोस त्रियोजो और AIIB जिम लिक्विन AIIB के हैड ने। ठीक है, सारे स्टैटिक फैक्ट्स इंपोर्टेंट बनते हैं, किते ना किते स्टैटिक्स के विचों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सारे फैक्ट्स याद रखने ने। नैक्सट चलते हैं। इस तो इलावा ADB के बारे याद रखना है। वाइस प्रेजिडेंट रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे इंडियन ने अशोक लवासा। नेक्स्ट है, विच बैंक इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू अ पोल कंडक्टेड बाय वेल नोन पब्लिकेशन एशिया मनी एक पब्लिकेशन है, इसने की किया इंडिया के मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी चूज की है, इंडैक्स जारी किया है। इस टॉप किया गया HDFC बैंक द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन HDFC बैंक द्वारा इस इंडैक्स के टॉप किया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए, काफ़ी इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने, सारे आप काफ़ी बार भी डिस्कस किए हुए हैं। एक बार रिवीजन करांगे, हल्की जी रिवीजन करांगे, ज़्यादा फैक्ट नहीं डिस्कस करांगे। HDFC बैंक हम हार नहीं मानेंगे, सॉन्ग याद रखना है। इस तो इलावा HDFC बैंक द्वारा ही रिसेंटली MD अपॉइंट किए गए थे शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक के आदित्य पुरी MD होंगे सी, इन्हों अवार्ड दिता गया सी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस तो इलावा रिसेंटली इन्हों एडवाइजर अपॉइंट किया गया किहड़ी कंपनी के विच, कमेंट बॉक्स में दसना किहड़ी कंपनी के विच। कल या परसों डिस्कस किया सी आपां ने, आदित्य पुरी नूं अपॉइंट किया गया। SBI द्वारा रिसेंटली टाइटन पे दे नाल एग्रीमेंट साइन किया गया, टाइटन वॉच कंपनी के नाल टाइटन पे बनाने के लिए। इस तो इलावा SBI के रिसेंटली चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, अश्वनी भाटिया याद रखने ने MD अपॉइंट किए गए हैं। इन्हें भी दोनों अपॉइंटमेंट्स रीसेंट दिया ने। ठीक है जी, सारे फैक्ट्स याद रखने ने। बाकी फैक्ट्स आप काफ़ी बार डिस्कस किए हुए हैं, रिवाइज नहीं करांगे, अज किसी होर दिन दोबारा रिवाइज करांगे। नैक्सट चलते हैं, विच प्लेयर हैज़ टॉप द ICC रैंकिंग्स जारी की गई ने, या कह सकते हैं कि बर्थडे गिफ्ट दिता गया विराट कोहली नूं। विराट कोहली का बर्थडे सीगा, ठीक है, उसी दिन ICC रैंकिंग्स जारी की गई ने, और विराट कोहली पहले नंबर पर ने ICC रैंकिंग्स दे विच। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैडकुआटर कित्थे है, दुबई दे विच है, ये याद रखना है। और विराट कोहली दुबई तो याद रखना कि IPL हेल्ड किया गया, IPL दुबई के विच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वूमेन T20 चैलेंज भी दुबई के विच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। किनवा एडिशन है, तीसरा एडिशन है। IPL का किनवा एडिशन है, 13th एडिशन है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स याद रखने ने। इस तो इलावा IPL के लिए ड्रीम 11 अपॉइंट की गई सी स्पॉन्सर, और वूमेन T20 चैलेंज के लिए अगर आप गल करिए जियो नूं अपॉइंट किया गया सी स्पॉन्सर। बाकी ऑप्शनस दे विच रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर रहे हैं इस रैंकिंग दे विच। बॉलिंग कैटेगरी दे विच जसप्रीत बुमराह द्वारा टॉप किया गया, बॉलिंग दे विच जसप्रीत बुमराह द्वारा टॉप किया गया। शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया तो बिलोंग करते हैं, इन्होंने कल आप डिस्कस किया सी, रिटायरमेंट अनाउंस की है। इस तो इलावा M सैम्यूल्स, इन्हों रिलेटेड न्यूज़ है, इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस की है। वैस्ट इंडीज़ तो बिलोंग करते हैं क्रिकेट प्लेयर M सैम्यूल्स, इन्हों द्वारा रिटायरमेंट अनाउंस की गई है। कंट्री पूछी जा सकती है, स्पोर्ट्स पूछी जा सकती है। ठीक है जी। इस तो इलावा आप डिस्कस कर लिया कि विराट कोहली ICC रैंकिंग के टॉप किया बॉलिंग कैटेगरी के जसप्रीत बुमराह द्वारा। इस तो इलावा इंपोर्टेंट बनेगा टीम कैटेगरी के टीम की गल करते हैं तो इंग्लैंड द्वारा टॉप किया गया ICC रैंकिंग्स के सब तो फर्स्ट नंबर पर टीम केड़ी है, इंग्लैंड है, दूसरे नंबर पर इंडिया है। ठीक है, ICC रैंकिंग के इंडिया किनवें नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है।
फीफा अगर फुटबॉल की गल करते हैं तो फीफा रैंकिंग दे विच इंडिया किनवें नंबर ते सी 109वें नंबर ते सी। ठीक है। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ बिकम फर्स्ट कंपनी ऑफ इंडिया टू गेट 100% टैक्स एग्जम्पशन। टैक्स बेसिकली इनकम टैक्स की गल हो रही है इत्थे कि इनकम टैक्स की छूट दी गई है 100%। किहड़ी कंपनी नूं? फर्स्ट कंपनी बनी है इंडिया की मिक रेडवुड। मिक रेडवुड पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसमें इनकम टैक्स के उत्ते छूट दी गई है। ठीक है, याद रखनी इंपॉर्टेंट बनेगा मिक रेडवुड। मिक रेडवुड। रिलायंस की गल करते हैं, रिलायंस के बारे आप काफ़ी बार फैक्ट डिस्कस किए ने। रिलायंस के जियो की अगर आप गल करते हैं तो जियो ग्लासिस लॉन्च किए गए, जियो मीट भी लॉन्च की गई, जियो द्वारा अनाउंस किया गया कि 5G जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली लॉन्च किया भी जा चुका है पर उसमें प्रॉपर तरीके ट्रायल तो हजे ट्रायल चल रहे हैं, फाइनल ट्रायल किया जाएगा। रिलायंस की ही गल करते हैं, जियो ने स्टेक बाय किया, स्टेक बेचा, सॉरी जियो ने स्टेक बेचा 7.77% स्टेक गूगल द्वारा जितया गया, बाय किया गया, और 9.99% स्टेक फेसबुक द्वारा बाय किया गया। TCS के बारे एक चीज़ याद रखनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्हों के जोड़े हैड ने रतन टाटा, इन्हों रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता गया सी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्ना द्वारा दिता गया सी? मेरे माइंड चो स्किप कर रहा है, कमेंट बॉक्स में दसने। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रतन टाटा नूं रिसेंटली दिता गया सी किन्ना द्वारा? नेक्स्ट है वट इज़ द रेंज ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम। पिनाका रॉकेट सिस्टम, पिनाका रॉकेट सिस्टम है जिहड़ा इंडिया का, इसनूं की किया गया है? टेस्ट किया गया। इसकी स्ट्राइक रेंज कितनी है? 37 किलोमीटर। बेसिकली यह रॉकेट सिस्टम है जिहड़ा कि कह सकते हैं रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, इसका सैकेंड वर्जन बनाया गया पिनाका मार्क 2 के नाम तो, पिनाका मार्क 2। ठीक है, डिटेल दे विच नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नहीं आए, कल आप डिस्कस कर लांगे कि इसनूं DRDO द्वारा टेस्टिफाइड किया गया, DRDO द्वारा टेस्टिफाइड किया गया। ठीक है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, इंडिया के विच ही बनाया गया है, स्मॉल रेंज कैटेगरी के विच आंदा है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए, इसका नाम है जिहड़ा लॉर्ड शिवा के नाम के उत्ते रखा गया, भगवान शिव के नाम के उत्ते। पिनाका रॉकेट सिस्टम की एक इंपोर्टेंट चीज़ है कि यह लगातार 12 रॉकेट्स की कर सकता है, फायर कर सकता है। जिहड़ा रॉकेट लॉन्चर है 12 रॉकेट्स, काफ़ी घट टाइम इंटरवल, बेसिकली 44 सेकेंड शायद, 44 सेकेंड के इंटरवल के नाल 12 रॉकेट यह की कर सकता है, फायर कर सकता है। पिनाका रॉकेट सिस्टम 37 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज है। इसका DRDO द्वारा टेस्ट किया गया। कित्थे टेस्ट किया गया? चंदीपुर उड़ीसा के विच। आपां डिस्कस किया है काफ़ी बार, व्हीलर आइलैंड के नाम तो जानिया जाता सी, जिसका नाम चेंज किया गया सी APJ अब्दुल कलाम के नाम के उत्ते, APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की गल करते हैं, इन्हों द्वारा एक कमेटी बनाई गई है टू रिव्यू गाइडलाइंस ऑन टैलीविजन रेटिंग एजेंसीज। इंपोर्टेंट इत्थों याद रखांगे किस चीज़ के लिए कमेटी बनाई गई? टैलीविजन रेटिंग एजेंसीज की जिहड़ी गाइडलाइंस ने उसनूं रिव्यू करने के लिए, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ किन्ना दी चेयरमैनशिप के अंडर? शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति ये कौन ने? ये बेसिकली CEO ने प्रसार भारती दे CEO ने शशि शेखर वेम्पति। इन्हों की चेयरमैनशिप के अंडर टैलीविजन रेटिंग एजेंसीज की गाइडलाइंस को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई है। किन्ना द्वारा बनाई गई है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये किन्ना दे लवे है? प्रकाश जावेदकर दे लवे। प्रकाश जावेदकर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने। प्रकाश जावेदकर की गल करते हैं, इन्होंने लवे इस तो इलावा हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है और इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है। राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र तो। ठीक है जी, इस तो इलावा अदिले सुमनरीवाला का नाम इंपोर्टेंट रहेगा। अदिले सुमनरीवाला रिसेंटली न्यूज़ के 2 दिन पहले आप डिस्कस किया, इन्हों का नाम, इन्हों री इलैक्ट किया गया सी एथलैटिक फैडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में, प्रेजिडेंट के रूप में एथलैटिक्स फैडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तो इलावा एक कमेटी के भी हैड अपॉइंट किए गए सी,
ये किते सी इंडियन ओलंपिक कमेटी ने, इंडियन ओलंपिक कमेटी ने एनुअल ग्रांट्स और एनुअल फीस नू रिव्यू करन दे लई, एनुअल ग्रांट्स और एनुअल फीस नू रिव्यू करन दे लई अदीले सुमनरीवाला नू कमेटी दा हैड अपॉइंट किया गया। के राहुल क्रिकेटर ने इन्हां रिलेटेड न्यूज़ है। के राहुल क्रिकेटर के राहुल वाज अवॉर्डेड एकलव्य अवार्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। कर्नाटका सरकार ने एकलव्य अवार्ड दिता है क्रिकेटर के राहुल नू, एकलव्य अवार्ड क्रिकेटर के राहुल नू कर्नाटका सरकार द्वारा। इस तो इलावा वूमेन क्रिकेटर वेदा कृष्णामूर्ति नू भी इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। के राहुल और वेदा कृष्णामूर्ति दोनों नू एकलव्य अवार्ड दिता है कर्नाटका सरकार ने। इस तो इलावा सतीश प्रसाद सिंह चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है। इन्हां दा नाम इंपोर्टेंट बनया किस करके, शॉर्टेस्ट टैन्यूअर करके। ये सिर्फ 5 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर रहे सी 1968 दे विच। 1968 की अगर आप गल करते हैं, जिस तरीके नाल अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आप डिस्कस करते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे सी 13 दिन के लिए, सिर्फ 13 दिन। अगर आप शॉर्टेस्ट टैन्यूअर की गल करिए इंडिया के इतिहास के इंडियन हिस्टरी के तो सब तो शॉर्टेस्ट टैन्यूअर किन्ना दे, अटल बिहारी वाजपेयी जी दे 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे सी। उस तो बाद इन्हों सरकार गिर गई सी, इन्हों दोबारा इलैक्शंस होए और दोबारा प्राइम मिनिस्टर यही अपॉइंट किए गए सी। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट टैन्यूअर 5 दिन के लिए सिर्फ चीफ मिनिस्टर रहे सी सतीश प्रसाद सिंह बिहार के। याद रखना रिसेंटली इन्हों की डेथ हो गई। नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर एट गुरुवायूर केरला अंडर प्रसाद स्कीम। तो किन्ना दोबारा लॉन्च की गई है, प्रहलाद सिंह पटेल। कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर ने प्रहलाद सिंह पटेल दामोह मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने। ठीक है, हुण इंपोर्टेंट की है कि टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर है गुरुवायूर केरला दे विच। बेसिकली डिटेल दे विच इस न्यूज़ के बारे डिस्कस करते हैं। पहले आप ऑप्शन डिस्कस कर लें। RK सिंह पावर एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ने, और RK सिंह आरा बिहार तो लोक सभा MP ने। श्रीपद येसो नायक की अगर आप गल करिए, श्रीपद येसो नायक आयुष मिनिस्टर ने। अरुणाचल वैस्ट तो लोक सभा MP ने, सॉरी नॉर्थ गोवा तो लोक सभा MP ने। अरुणाचल वैस्ट की अगर आप गल करिए तो किरण रिजिजू ने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू। जितेंद्र सिंह उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर तो लोक सभा MP ने जितेंद्र सिंह, और इन्होंने लवे डोनर मिनिस्ट्री है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्ट्री है। पीयूष गोयल की गल करते हैं, रेलवे मिनिस्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। इस तो इलावा 2 एडिशनल मिनिस्ट्री इन्होंने दी गई ने, कॉमर्स एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री। राज्य सभा MP ने ये महाराष्ट्र तो। हुण न्यूज़ डिस्कस करते हैं डिटेल दे विच की है कि प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर ओपन किया गया गुरुवायूर केरला अंडर प्रसाद स्कीम। पहले तो स्कीम इंपोर्टेंट बनेगी, कदों लॉन्च की गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है 2015 दे विच। प्रसाद की फुल फॉर्म इंपोर्टेंट बनेगी द पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंशन ड्राइव। बेसिकली की है कि ਜਿਹੜੇ पिलग्रिमेज ने धार्मिक स्थान कह सकते हैं आप, इन्हों डेवलप करने के लिए इस स्कीम लॉन्च किया गया सी। प्रसाद स्कीम 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ लॉन्च की गई सी। इस दे विच डिफरेंट पिलग्रिमेज कह सकते हैं या धार्मिक स्थान ऐड ने। इन्हां दे विच एक नवा कह सकते हैं ऐड किया गया, किहड़ा ऐड किया गया, गुरुवायूर केरला के गुरुवायूर नूं इस स्कीम के अंडर ऐड किया गया। इस करके इत्थे टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर ओपन किया गया। ठीक है, जिस नाल टूरिज्म इंक्रीज किया जा सके और स्टेट का रेवेन्यू इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट है हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑन लुहरी स्टेट 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। लुहरी स्टेट 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिहड़ा, इस दे लई इन्वेस्टमेंट है, जिहड़ी इन्वेस्टमेंट है कितनी अनाउंस की गई है कैबिनेट द्वारा कितनी इन्वेस्टमेंट अनाउंस की गई है 1810 करोड़।
वैसे अगर आप अमाउंट की गल करिए, अमाउंट काफ़ी रेयर चांस है पूछे जाने का, पर एक बार क्वेश्चन इस करके जानबूझ के इस तरीके ਨਾਲ डिस्कस कर रहे हैं ताकि बाद ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ स्टूडेंट्स कह देंगे ने कि ये चीज़ प्रॉपरली दसी नहीं। अमाउंट काफ़ी वैसे घੱਟ इंपोर्टेंट है, पर एक बार याद रखनी है 1810 करोड़। इंपोर्टेंट रहेगा कि ਕਿਹੜੀ स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ इसनूं लगाया जा रहा है। लोहरी स्टेट 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ਕਿਹੜੀ स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ लगाया जा रहा है, दूसरा ਕਿਹੜੀ रिवर ਦੇ ਉੱਤੇ। स्टेट इंपोर्टेंट बनेगा और दूसरा रिवर इंपोर्टेंट बनेगा। ठीक है, डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करते हैं ਕੀ ਹੈ कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स, इकनॉमिक अफेयर्स के उत्ते जिहड़ी कैबिनेट कमेटी है उसने 1810 करोड़ रुपए अप्रूव किए ने 210 मैगावाट लूहरी स्टेट 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। कित्थे लगाया जा रहा है, सतलुज रिवर के उत्ते विच इज़ सिचुएटेड इन शिमला एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के विच सतलुज रिवर के उत्ते इस प्रोजेक्ट नूं लगाया गया। ठीक है, ये जिहड़ा प्रोजेक्ट है इंप्लीमेंट किया जाएगा, चलाया जाएगा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा इसनूं ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। ठीक है, मेरे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देना है इकनॉमिक अफेयर्स सैक्रटरी कौन ने, इंडिया के इकनॉमिक अफेयर्स सैक्रटरी। कमेंट बॉक्स के विच इन्हां दा नाम दसना है। नेक्स्ट चलते हैं, विच टू कंट्रीज हैव लॉन्च जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कैराट 20, कैराट 2020। कैराट 2020 एक्सरसाइज किहड़ी दो कंट्रीज़ दे विच ऑर्गेनाइज की जाएगी, किहड़ी दो कंट्रीज़ दे विच ऑर्गेनाइज की जाएगी, ये की जाएगी फोर्थ ऑप्शन बांग्लादेश और यूएसए। बांग्लादेश और यूएसए द्वारा अनाउंस की गई है एक नेवी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी कैराट 2020, कैराट 2020। ठीक है जी, इस तो इलावा मालाबार एक्सरसाइज याद रखनी है जिस दे विच इंडिया, जापान, यूएसए और आस्ट्रेलिया चारों कंट्रीज मिलकर पार्टिसिपेट कर रही हैं और कंडक्ट की जा रही है। ठीक है, याद रखनी है, इंपोर्टेंट रहेगी। फर्स्ट फेज़ है जिहड़ा वो अज तक कंडक्ट किया जाएगा, उस तो बाद सैकेंड फेज़ भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, इस तो इलावा अच्छा बांग्लादेश के नाल इंडिया की एक्सरसाइजिज की गल करिए तो बोंगो सागर और समप्रीति, बोंगो सागर और समप्रीति। यूएसए के नाल टाइगर ट्रंप याद रखनी है, कोप इंडिया, वज्र प्रहार और इस तो इलावा वज्र प्रहार, कोप इंडिया और युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास। फ्रांस के नाल शक्ति, वरुण और गरुड़, तीन इंपोर्टेंट एक्सरसाइजेज फ्रांस के नाल ने, शक्ति, वरुण और गरुड़, शक्ति, वरुण और गरुड़। ठीक है जी, यूएसए के विच इलैक्शनस हैल्ड किए गए हैं। अगर आप गल करिए, आप डिस्कस किया है काफ़ी बार कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी तो बिलोंग करते हैं, इस तो इलावा जो बिडन डेमोक्रेटिक पार्टी तो ने। ठीक है, इलैक्शन के जो बिडन काफ़ी अगे चल रहे हैं, बाकी अज क्लीयर हो जाएगा प्रॉपरली कि किन्ना दोबारा इलैक्शन जीते जाएंगे। नेक्स्ट है एस्ट्रावैट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट, द एस्ट्रावैट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिहड़ा ये कित्थे लोकेटेड है, किहड़ी कंट्री दे विच ये लोकेटेड है। एस्ट्रावैट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट इसी तरीके नाल स्टैटिक दे विच क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरीके नाल आपां पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बराखा रिसेंटली आप डिस्कस किया सी, बराखा न्यूक्लियर पावर प्लांट उस कंट्री का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट सीगा जिहड़ा ऑपरेशनलाइज होया सी, किहड़ा सी यूएई दे विच सीगा, यूएई दे विच सीगा बराखा न्यूक्लियर पावर प्लांट। सिमिलर तरीके नाल एस्ट्रावैट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट बेलारूस का है, बेलारूस का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, जिहड़ा लगाया जा रहा है और इस दे बेसिकली इस दे खिलाफ विद्रोह किया जा रहा है कि जी इस दे बेलारूस की अगर आप गल करिए जी कंट्री है इसका बॉर्डर शेयर होंगे लिथूनिया कंट्री के नाल, लिथूनिया कंट्री के नाल बॉर्डर शेयर होंगे और लिथूनिया द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है कि अगर यह ऑपरेशनलाइज किया गया तो यह किते ना किते साडे लोगों के लिए नुकसानदायक होएगा। ठीक है, बेसिकली अपने लिए ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं बनेगा। सिंपल याद रखना है कि जिहड़ा एस्ट्रावैट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किहड़ी कंट्री दे विच है, बेलारूस दे विच है। इस तो इलावा लिथूनिया कैपिटल याद रखनी है, लिथूनिया कैपिटल विलनियस है, विलनियस है और करंसी इत्थे लितास चलती है। बेलारूस की गल करते हैं, बेलारूस कैपिटल और करंसी इंपोर्टेंस ज़्यादा होएगी। बेलारूस कैपिटल की है, बेलारूस कैपिटल है मिन्स्क, बेलारूस कैपिटल है मिन्स्क और करंसी इत्थे रूबल चलती है। बेलारूस कैपिटल मिन्स्क है, करंसी रूबल चलती है।
याद रखना। इस तो इलावा बेलारूस ऐसी कंट्री है जिससे रिसेंटली आप डिस्कस किया सी प्रॉब्लम्स आईयां सी जी इलैक्शनस के बारे प्रॉब्लम आई सी इत्थे प्राइम मिनिस्टर द्वारा रेजिग्नेशन दिता गया सी और रशिया द्वारा भी अनाउंस किया गया कि अगर तुसी चाहो तो साडी कंट्री के अंडर ऐड हो सकते हो। इस तो इलावा बाकी कंट्रीज़ के रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करांगे। फिलीपींस के बारे आप डिस्कस कर चुके हैं। गोनी के बारे याद रखना है। गोनी टाइफून कित्थे आया है? फिलीपींस दे विच। इस तो इलावा साउदी अरेबिया, पहले बेलारूस की गल करते हैं जी हुणे न्यूज़ डिस्कस की है कि जिहड़ा यह पावर प्लांट है रशिया द्वारा ही बनाया गया। रशिया द्वारा बनाया गया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ बेलारूस। साउदी अरेबिया रिसेंटली बेसिकली अगर आप गल करिए साउदी अरेबिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ये न्यूज़ के विच रही है कि होया कि इंडिया ने इस दे नाल वार्ता की है, गलबात की है किस दे लई कि अगर कोविड-19 के दौरान आप डिस्कस किया कि डिफरेंट कंट्रीज़ के जिहड़े इंडियन वर्कर सीगे काम करते सी वो वापस इंडिया के आ गए सी, आप ले आए सी इंडिया के वापस। हुण उन्हां वर्कर्स नूं वापस काम ते भेजना है, इस दे लई टॉक की गई है GCC के नाल जिसका हैडकुआटर साउदी अरेबिया के विच है, जिसका हैडकुआटर साउदी अरेबिया के विच है ताकि इंडियन वर्कर्स नूं वापस उन्होंने काम भेजा जा सके गल्फ कंट्रीज़ के विच। गल्फ कंट्रीज़ कह लीए या अरब कंट्रीज़ के विच। जिहड़ी यह ऑर्गेनाइजेशन है इन्हां दी GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 1981 के विच बनाई गई सी। किहड़ी कंट्रीज़ इसदियां मैंबर ने? बहरेन, कुवैत, ओमान, कतर, साउदी अरेबिया और UAE। बहरेन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और UAE। ठीक है जी। इस तो इलावा कैपिटल्स इन्हों की याद रखनी इंपोर्टेंट बनी है। बहरेन कैपिटल याद है किसी को? मनामा। बहरेन कैपिटल की है? मनामा है। कुवैत कैपिटल कुवैत सिटी है। ओमान कैपिटल मस्कट है। कतर कैपिटल दोहा। UAE कैपिटल आबू धाबी। सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद है। ठीक है, याद रखनी इंपोर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है इजराइल के रिलेटेड। इजराइल की अगर आप गल करते हैं दिन प्रतिदिन इजराइल के नाल कोई ना कोई आप न्यूज़ इंपोर्टेंट बन रही है। इजराइल के विच इंडिया ज़्यादा तो ज़्यादा एग्रीमेंट्स कर रहा है इजराइल के नाल। इंडिया और इजराइल ने हुण एग्रीमेंट साइन किया एग्रीकल्चर प्रोजैक्ट के लिए मेघालय फार्मर्स की। मेघालय फार्मर्स नूं हैल्प पहुँचाने के लिए एग्रीकल्चर प्रोजैक्ट का एग्रीमेंट साइन किया गया इजराइल के नाल। ठीक है, कल परसों आप डिस्कस किया सी असम के नाल। असम के नाल की किया गया? वैजीटेबल सेंटर बनाया गया इंडिया इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वैजीटेबल प्रोडक्शन। हुण मेघालय फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर प्रोजैक्ट भी इजराइल के नाल मिलके बनाया जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट और UT हैज़ लॉन्च महिला शक्ति केंद्र एंड लॉन्चिज सेल्फी विद डॉटर कैंपेन। महिला शक्ति केंद्र लॉन्च किए गए हैं और जी सेंट्रल गौरमेंट की स्कीम है सेल्फी विद डॉटर कैंपेन है सेंट्रल गौरमेंट का, इसनों भी लॉन्च किया गया। ठीक है, किहड़ी स्टेट या UT द्वारा लॉन्च किया गया? इसनों जम्मू एंड कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया। जम्मू एंड कश्मीर द्वारा इसनों लॉन्च किया गया। ठीक है, इस तो इलावा अगर आप गल करिए ऑप्शनस दे विच लद्दाख के बारे डिस्कस कर सकते हैं कि लद्दाख के GC आर के माथुर लद्दाख के गवर्नर ने। जम्मू एंड कश्मीर के GC मुर्मू होंदे सी। GC मुर्मू नूं कैग अपॉइंट किया गया और जम्मू एंड कश्मीर के नवे गवर्नर अपॉइंट किए गए सी सन्हा, मनोज सन्हा। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स के रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करांगे। सब तो पहले अच्छा जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड एक न्यूज़ रिसेंटली आप डिस्कस की थी पंचायत ऐड की गई ने जम्मू एंड कश्मीर दे विच। ठीक है, पहले जम्मू एंड कश्मीर दे विच पंचायत नहीं होंदियां सी। पंचायत एक्ट के अंडर जम्मू एंड कश्मीर नूं लिया गया रिसेंटली, याद रखना। जम्मू एंड कश्मीर दे विच रिसेंटली जोजिला टनल भी डिस्कस की थी अपने, जोजिला टनल। ठीक है, ये भी याद रखनी है। बेसिकली 14 पॉइंट समथिंग किलोमीटर की है, याद रखनी है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की अगर आप गल करते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड का एक शिप है C452। इस दे बारे आप डिस्कस किया सी आई थिंक लास्ट मंथ या उस तो लास्ट मंथ डिस्कस किया सी, जिस दे विच INS सचेत के बारे डिस्कस किया सी अपने। INS सचेत और C451 और 452 नूं
ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ L&T ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ INS ਸਚੇਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ C452 ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਤਨਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੜੀਸਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਾਓ ਮਾਸਕ ਲੈ ਜਾਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ, ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੋ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਾਓ ਮਾਸਕ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਰਾ ਲੋਕੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਟੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਮਾਸਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਸਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ COVID-19 ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਾਓ ਮਾਸਕ ਲੈ ਜਾਓ ਕੈਂਪੇਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।